Class, today we are going to discuss about the relaxation method. As the name represent, relaxation method for solution of linear equations. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, already in previous class we have discussed about the Gauss-Jacobi and Gauss-Seidel methods. There is a big difference between the Gauss-Jacobi and Gauss-Seidel, you know. But in a relaxation method, rules are similar, but values are different. Look this. Just we are going to take an example, then we can understand the concept of relaxation method. Consider the system. Consider the system. Okay. So this is the equation 10x minus 2y minus 2z equal to 6 minus x plus 10y minus 2z, 10x minus 2y minus 2z minus x plus 10y minus 2z equal to 7 minus x minus y plus 10z equal to 8. Okay, class, look at this system. In a Gauss-Jacobi, we will find the maximum value in one equation, while if we will talk about the Gauss-Seidel, we will find the maximum value in the entire equations. Okay, but here rules are similar. We will find the maximum value in one equation like Gauss-Jacobi. Okay, so first of all we will find the mod value. So here mod 10 plus mod 10 plus, so here we must write greater than, that means which is the maximum, 10 is maximum, so here mod 10 greater than minus mod 2, similarly like Gauss-Jacobi already we have discussed, plus mod 10 greater than minus 2 plus minus 2. Okay, like this. So we can consider for x, यानी here we will see, हम लोग देखेंगे x का कोएफिशिएंट क्या है, 10 है, देख सकते हैं. So here again similarly this process, minus, so here always we will consider the maximum value in equation. So here 1, so 10 mod 10 greater than minus 1 plus mod minus 2. We do not write for x and y, but here we are going to consider, so we can write again. We will take consider 10z. That means here we can observe that the diagonal values are maximums. Okay, so here हम लोग क्या करेंगे, 10 लेंगे, again 10z
So 10 greater mod, consider -1 -1 -1 plus -1. Yes या no? For z, ये लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर x y एंड देन ऑलरेडी ये कंसीडर्ड होते हैं, सो दैट इज द बेटर अप्रोच कि आप इसे प्रीवियस में ऐसे लिख दें तो ज्यादा बेटर अप्रोच होगा। ओके, सो हियर कर सकते हैं कोएफिशिएंट of x, coefficient of x, that is 10x, coefficient of y, that is 10y. yes या no? और कांस्टेंट कुछ भी होंगे so we will consider. Similarly, coefficient of z, that is change. ओके, ये हम सभी कंसीडर्स को ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर है। ओके, अब क्या करेंगे, राइट नाउ हम लोग जानते हैं, वी नो वेरी वेल इन गॉस जैकोबी एंड गॉस सेडल, हम लोगों को वी मस्ट ट्रांसपोज ऑफ द इक्वेशंस, सिस्टम को यानी इक्वेशंस को लुक एट द बोर्ड ट्रांसपोज करना कंपल्सरी है। लाइक दिस हमारे पास इक्वेशंस है 10x, so here we are going to transpose, now we are going to transpose equation first, equation 2 and equation, यानी कि हम लोग यहाँ पे आप ऑलरेडी ट्रांसपोज यानी कि सब्स्टिट्यूशन विधि यानी प्रतिस्थापन विधि जिसे हिंदी में बोलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को निकालेंगे और हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, दैट मींस हियर वी विल डिनोटेड बाय r, बिकॉज़ हम लोग का मेथड का नाम है रिलैक्सेशन मेथड, सो हियर वी विल राइट rx, r फॉर रिलैक्शन और x फॉर वेरिएबल x। rx इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशंस है, इन सभी सिस्टम को आप राइट साइड ले जाएंगे, हाँ, सो हियर rx इक्वल टू 10 6 माइनस, हमारे पास है 6 माइनस 10x, 6 माइनस 10x प्लस 2y प्लस 2z। यस या नो? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया हो कि इस वैल्यूज को मैंने राइट साइड ले गए, तो जहां पे 6 है ये जैसे ही जाते हैं, जैसे वैल्यू अगर शिफ्टिंग होता है तो चेंज होता है, ये already you know about in Jacobi's and Saddle etc. So yeah, minus 10x plus 2y plus 2z. So here we can consider this. Okay. Again similarly for the y, हम लोग y के लिए भी similarly concept लिखेंगे. So ry equal to 7 plus 10x, 7 plus x, 7 plus x plus 2z, 7 plus x minus
y की वैल्यू छूट गई है। सो 7 प्लस, बहुत ही आपको सावधानी से ध्यान रखने की जरूरत है, एक वैल्यू भी चेंज नहीं चाहिए। 7 प्लस x माइनस 10y एंड प्लस 2z। ओके, सिमिलरली फॉर rz you will write 8 plus x plus y minus 8 plus x plus y minus 10। ध्यान से आप सभी वैल्यूज को देखिएगा कि कैसे हियर हाउ वी हैव ट्रांसपोज द इक्वेशंस इन दिस फॉर्म। ओके, लाइक दिस। सो हमारे पास 8 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 10z भी आ चुके हैं, ry प्लस 7 प्लस एक्स माइनस 10y प्लस 2z भी आ चुके हैं, और rx इक्वल टू 6 माइनस 10x प्लस 2y प्लस 2z आ चुके हैं। हम सभी ऑलरेडी we have discussed in Gauss Jacobi एंड सैडल में हम लोगों ने क्या किया था, इक्वेशन फर्स्ट मानने के लिए इनिशियल वैल्यू को 0 पुट कर देते थे। ओके, सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नाउ we are going to put the initial value of x, y and z, that is x equal to 0, y equal to 0 and z equal to 0 into above given equation first, 2 and यानी कि जो इक्वेशंस हमारे पास दिए हुए हैं ऊपर वाले इस इक्वेशंस पे इस वैल्यू को हम लोग पुट अप कर देंगे। ओके, तो हमारे इक्वेशन फर्स्ट वीक निकल जाएंगे फाइंड आउट। यस या नो? ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन Gauss-Seidel methods। ओके, so here we are going to put this value, so rx 6 minus 10 into 0 plus 2 into 0 plus 2 into 0। yes या no class? एंड here जब इसकी वैल्यूज को हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यूज कितनी आएगी, देखिए 6 minus 0 plus 0 plus 0 equal to 6। yes या no? obviously 0 के लिए वही आएंगे। Similarly for ry 7 plus 0 minus 10 into 0 plus 2 into 0। Similarly 7 plus 0 minus 10 into 0 0 plus 0 equal to 7। हमारे पास एक और इक्वेशंस भी आए रिलेशंस इस दैट मींस ry। Similarly for rz 8 plus 0 plus 0 minus 10 into 0। so here we will see 8 plus 0 plus 0 minus 0 equal to 8। हमारे पास here we can see as well as here we can observe into these equations, that is rx, ry and rz। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि मैक्सिमम वैल्यू किसके आए हैं, rz की वैल्यू है। हमेशा रिलेशन जैसा नाम वैसा काम, as the name represents।
नाम ही रिलेक्शन है तो कहीं ना कहीं इक्वेशंस को भी रिलेक्शंस मेथड्स होते हैं। तो क्या है, हमारे पास मैक्सिमम किसकी वैल्यू ज्यादा है, आरजेड की वैल्यू ज्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, आरजेड का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है, हियर tangent, yes or no? So here we can write, because according to rule of relaxation method, according to rule of relaxation method, we can find maximum value, we can find maximum value in the entire equation, entire system, and entire system, and we will put this value, and we will put this value in maximum coefficient, ओके। इतने स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है कि बस आपको समझाने के लिए लिखे गए हैं। अगर आप कैसे मैक्सिमम वैल्यू लेंगे इसको, आपको इतने इक्वेशन अगर आप लिखते हैं तो सो दैट बेटर, बट इतने ज्यादा मैक्सिमम स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। So here tan z is maximum, so here we can write tan z equal to 8. Can we write or not write, class? Of course we can write. So here इसीलिए therefore z equal to 8 by 10, and here we can write z equal to 0.8. yes या no? Of course we can write. हमारे पास वैल्यू z की आ गई है। अगेन अब हमारे पास वैल्यूज तो आ गई हमारे पास, बट अभी वैल्यू हमारे पास तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और नियरेस्ट यानी अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करना है ना। again we will put the value, again we will put the previous value, not value. Look at the board. Again we will put the previous value, again we will put the previous value in above इक्वेशंस। जो ऊपर इक्वेशंस दिया गया है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट को निकाला था इनिशियल वैल्यू x, y एंड z की वैल्यू 0 पुट किए थे, तो उसी तरीके से पुट करेंगे, बट यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया। x इक्वल टू 0 तो रहेंगे ही ऑफ कोर्स, y इक्वल टू 0 भी रहेंगे, बट z की वैल्यू क्या हुई, चेंज हो गई। दैट्स गुड। सो z इक्वल टू 0.8। क्लास आप यहां तक समझ गए हैं, कोई डाउट? अगेन दिस प्रोसेस विल बी कंज्यूम्ड। लुक एट rx can I erase of this? आपने इधर कर दिया होगा तो so I am going to erase left side। So here rx equal to 6 minus 10x plus 2y plus 2z. Okay, so here 6 minus
10 into 0 plus 2 into 0 plus 2 into z, that means 0.8. So 2 into 0.8 हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो हियर जैसे ही वैल्यू आप पुट करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको वैल्यूज आपको फाइंड आउट होंगे, एंड हियर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज x 0। ओके, सपोज 6 माइनस 10 आप इस वैल्यूज को पुट कीजिए तो कितने वैल्यूज आएंगे? 6 माइनस 0 प्लस 2 into 0, that means 0 प्लस 2 into 0.8 को आप करेंगे तो कुछ वैल्यूज आएंगे। कितने आएंगे कैलकुलेट बताइए? 2 into 0.8, क्लास बताइए कितने आए वैल्यूज? 1.6। कैलकुलेटर से निकालने हैं या फोन से? साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल के बताइए 3 डिजिट्स तक कितने आते हैं? 2 into 0.8 कितने हैं? 1.60। 1.6 only 6। गुड। तो जब आप इसे करेंगे तो हियर यू कैन सी लाइक दिस 7.6। ऑफ कोर्स वी कैन राइट। सो हमारे पास इक्वेशंस आ चुके हैं। Look at in the we will consider on the second equations ry equal to 7 plus x minus 10y plus 2z. Okay, here we will put this value 7 plus x की वैल्यू कितनी है? 0 है, so 0 ही पुट करेंगे, minus 10 into 0 and plus 2 into 0.8। आप इसे जब फाइंड आउट करेंगे तो बताएंगे क्लास। देखिए आप सभी को साइंटिफिक कैलकुलेटर, वी नीड साइंटिफिक कैलकुलेटर बिकॉज वी आर गोइंग टू हायर मैथमेटिक्स, और इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर का होना कंपल्सरी है। सो लुक एट 7 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 2 into 0.8 कितने आएंगे? सॉरी 1.6। आप इसे जैसे ही करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएंगी 8.6। सो हमारे पास इक्वेशंस। ओके क्लास, अगेन फॉर जेड वैल्यूज देखिएगा बहुत सावधानी से, वेरी केयरफुल्ली आपको वैल्यू निकालने होते हैं। इसमें कोई एक भी वैल्यूज अगर डिफरेंस हो गई, अलग हो गई, तो कहीं कभी भी आप नेवर यू कैन ऑब्टेन द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सो हियर फॉर rz इक्वल टू 8 प्लस x प्लस y माइनस 10z, 8 प्लस x प्लस y माइनस 10z, हियर 8 प्लस 0 माइनस, एंड z की वैल्यू हमारे पास है 0.8। ओके क्लास, 0.8, तो कितनी वैल्यूज आएगी? 8 प्लस 0 माइनस, अब यस इसकी वैल्यूज कितनी आएगी? 8। कंफर्म। सो हियर हम लोग देखेंगे a0 और a8 कट गई और वैल्यूज कितनी आई? rz की 0। तो हमारे पास 3 वैल्यूज आई। कितनी वैल्यूज आई? 3। वी हैव 3 वैल्यूज फॉर द rx रिलेशन is ry रिलेशन y एंड फॉर rz रिलेशन 0। बट अगेन अकॉर्डिंग टू द रूल, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है। Here I have, look at the board class, this is according to the rule of relaxation method, we can find the maximum value in the entire system and we will put this value in maximum coefficient. So हमारे पास यहाँ पर maximum value किसकी है? Rx में आई है 7.6, yes या no? Ry की वैल्यू कितनी आई है? Look at the board, आप ध्यान से देखेंगे 8.6 and Rz, the value of the rz equals to 0. So here we will consider on the system for ry. That's why, because according to the rule of the relaxation method, जो मेथड कहता है,
तो हम लोग क्या करेंगे, अब लुक एट द सिस्टम, वही सेम पैटर्न, कोएफिशिएंट वैल्यू को पहले फाइंड आउट करेंगे। ry की कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है 10y, सो हियर क्लास 10y इक्वल टू 8.6, 10y इक्वल टू 8.6। तो जैसे हम अगर निकालेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसलिए y इक्वल टू 0.86, ऑफ कोर्स वी कैन राइट यस या नो। सो हमारे पास y की वैल्यूज भी आएगी। आगे we will look at the board again, we will put this value in equations। हम लोग क्या करेंगे, इसे इक्वेशंस में पुट करेंगे, जो हमारा rx, ry एंड rz है। बट यहाँ पे हमारे पास वैल्यू चेंजेस हो चुके हैं। ऑलवेज यू मस्ट लुक एट द बोर्ड क्लास, always you must put the previous value, not the initial value. Okay, so here हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, yes 7 x की वैल्यू कितनी है 0, सॉरी x की वैल्यू 0 है, yes गुड। बताते जाएंगे, x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू 0.86, गुड वेरी गुड, एंड z की वैल्यू 0.8, z की वैल्यू है 0.8। हमारे पास वैल्यूज हैं, आपने प्रोसेस समझ गए होंगे आप सभी, यानी कि the process are similar with respect to Gauss-Jacobi and Gauss-Seidel. But the most important difference you must keep in your mind the maximum value into the previous value. जो मैक्सिमम वैल्यू होते हैं उसी का हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट निकालते हैं, और कोएफिशिएंट निकाल के उस वैल्यू को पुट करते हैं। अब आप पूछेंगे सर आखिर ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यू until you do not find the approx value of x, y and z, जब तक कि आप x, y और z का अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर ले। तो आप कहेंगे सर तो अंतर क्या हुआ, हम सभी तो गॉस जैकोबी भी तो कर रहे थे। अंतर है, डिफरेंसेस है, जैसा नाम होता है वैसा काम होता ही है। ऐसा नहीं कि रिलेक्शन लिख दिया तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा, नाम का असर पड़ता ही है। मान लीजिए मेरा नाम प्रभात है तो इसका भी इफेक्ट होता है। सिमिलरली मेथड अगर रिलेक्शंस लिखे गए हैं, क्या है आपको प्रोसेस में क्या है डायरेक्ट आप कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं, लेकिन जब हम लोग जैकोबी और सैडियल मेथड की बात कर रहे थे तो वहां पे क्या था, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। हम लोग को इक्वेशंस करते जाना है। एटलीस्ट जैकोबी मेथड एंड सैडियल मेथड में क्या होते थे, 8th इक्वेशंस 9th इक्वेशंस तक जाकर वैल्यूज को फाइंड आउट। तो कहीं ना कहीं आप कहते सर वी आर रेस्टलेसनेस, तो रिलैक्सन मेथड क्या है, इस रेस्टलेसनेस को समाप्त करने के लिए उसने क्या कहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान मत होइए, जो वैल्यू निकालेगा ना उस वैल्यू को डायरेक्टली आप पुट अप कर दीजिए जो मैक्सिमम कोएफिशिएंट्स वैल्यू होंगे। ओके, सो ऑलवेज, बट एक चीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैल्यूज हमेशा आप सही पुट करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर्स में अगर वैल्यू थोड़ी भी डिफरेंस हो गई, अगर एक की वैल्यू डिफरेंस हुई तो पूरे सिस्टम में कभी भी आपके अप्रॉक्स वैल्यू नहीं मिल पाएंगे। तो आई थिंक क्लास आज आपको क्लास बहुत इंटरेस्ट लगा होगा। फर्दर के लिए जब तक आप until you do not practice, you do not solve the questions, you cannot understand the concept of relaxer method, Saddle methods and addition method. Okay class, thank you so much.